A very good morning to all my dear students. My name is Shubhangi. Students, yesterday we have started our geography chapter number 8, Human Environment Interactions, the tropical and subtropical regions. So, students, in the introduction we have discussed about the story of a girl and her uncle who provided her books of nature from where she uh, gets to know about wildlife and generated her interest in that. She came to know about different kinds of people who lives in different region of the world. And after that we have studied about the first heading of the chapter, that is life in the Amazon basin, in which in the Amazon river many small rivers flows and joins in the Amazon river, which called as Amazon basin. Basically it is a valley in which all the small rivers join in the Amazon river. And we also studied that the tropical regions lie very close to the equator between 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के बहुत पास है, 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बीच में लाया करता है और उसको हम इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लाइमेट, how the climate changes there, and how hot and humid weather continuously maintains there, and how rains always fall there every day. Then we have studied about rainforest, what kind of plants grow in the rainforest, वहाँ पे कैसे plants grow करते थे. Rainforest में sunlight easily नहीं आती थी क्योंकि वहाँ के जो पेड़ों की जो शाखाएं थी या जो पत्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा डेंस थे. जो उनकी टहनियाँ थी पेड़ों की वो बहुत डेंस थी, मतलब बहुत घनी थी, जिसकी वजह से जो सनलाइट थी वो वहाँ से पास नहीं हो पाती थी. और जो उसका फ्लोर, मतलब जो उसकी जो ग्राउंड है फॉरेस्ट का, वो हमेशा गीला रहता था और हमेशा वहाँ पे अंधेरा रहता था. तो जो प्लांट्स हैं जो अंधेरे में रह लेते हैं, जिनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है या फिर जिनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, वो लोग वहाँ पे वो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर लेते थे. डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स वहाँ पे देखने को मिलती थी और डिफरेंट स्पीशीज हमें रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है. एंट ईटर, स्नेक, बर्ड्स, different kind of varieties of living creatures we can see in that rainforest. We can also see piranha fish in that rainforest, which is very dangerous. And we have also started the heading people of the rainforest just a little bit. So today we are going to continue our heading people of the rainforest. So students, let's start further. People of the rainforest. People grow most of their food in small areas after cleaning some trees in the forest. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. तो जो लोग थे रेन फॉरेस्ट में, उन्होंने वहाँ का हैबिटेट कैसे अडेप्ट किया था. जो वहाँ के लोग थे वो फॉरेस्ट की लैंड, जो थोड़ी सी लैंड क्लियर करके वहाँ पे अपने फूड या क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते थे. और जो वहाँ के मेन थे वो लोग हंटिंग और फिशिंग का काम करते थे, मतलब जो एनिमल्स को हंट करना और जो रिवर्स में से फिश पकड़ने का काम वहाँ पे मेन करते थे. और जो वुमेन्स हैं उनका काम क्या होता है, जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उनकी देखभाल करना. They mainly grow tapioca, pineapple, and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. They practice slash and burn agriculture. The staple food is manioc, also known as the cassava, that grows under the ground like the potato. तो मेनली वो कौन क्या चीज़ ग्रो करते थे, वो लोग मेनली ग्रो करते थे टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. और वहाँ पे हर टाइम ना हंटिंग एंड फिशिंग पॉसिबल नहीं हो पाता था कि वो लोग हर टाइम हंट करके अपने आप को फीड कर सके, मतलब अपना पेट भर सकें. तो जो वो वहाँ की वुमेन्स थी, जो वहाँ की वुमेन्स हैं, वो लोग जो भी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं वहाँ पे उनसे अपनी फैमिली का पेट भरती हैं. दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो भी वहाँ पे जंगल को काट के जहाँ जितने एरिया में उनको अपने क्रॉप्स ग्रो करने हैं, जो भी फूड मटेरियल उनको ग्रो करना है,
वो उतना एरिया को काट के वहाँ पे जो बुशेस हैं उनको बर्न कर देते थे, ताकि उनका जो लैंड है वो क्लियर हो जाए और वहाँ पे वो अपने जो भी उनको वहाँ पे उगाना है या फिर उनको ग्रो करना है वो वहाँ पे कर सके। वहाँ का जो स्टेपल फूड था वो मैनियोक है, और उसको कसावा भी कहा जाता है। और कैश दे ऑल्सो ईट क्वीन ants and egg sacs. Cash crops like coffee, maize and cocoa are also grown. वहाँ पे जो क्रॉप्स है ना वो कॉफी, मेज और कोकोआ वो भी वहाँ पे ग्रोन होती हैं। The rainforests provide a lot of wood for the houses. Some families live in the thatched house shaped like beehives. There are other large apartment-like houses called maloka with a steepy slanting roof. जो रेन फॉरेस्ट है ना वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वुड मिल जाता है, क्योंकि वो ट्रीज कट करते हैं तो उनको वुड इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो कुछ फैमिलीज थी जो उनके घर थे, जैसे बी हाइव्स होते हैं ना, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उस तरीके से उनके घर बने हुए थे, बिल्कुल जुड़े हुए, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल वहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, वैसे कुछ लोगों ने घर बना रखे थे। और कुछ लोगों के जो अपार्टमेंट्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, कुछ मतलब जो उनके घर थे वो काफ़ी बड़े थे, उनको मैलोका बोला जाता है। और वो काफ़ी स्टीपली स्लैंटिंग रूफ उनके मतलब उसकी काफ़ी ढलान वाली रूफ्स थी वहाँ पे। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। जो वहाँ पे लोगों की लाइफ थी ना अमेजोन बेसिन में, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. जो पुराने टाइम पे जो मतलब जो फॉरेस्ट के बीचों बीच वो सिर्फ वहाँ पे तभी पहुंच सकते थे जब वो रिवर के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब जैसे रिवर का बहाव है ना, जैसे पानी का बहाव है, तो वो जंगल के बीचों बीच तभी पहुंच सकते हैं अगर वो पानी के बहाव के अकॉर्डिंग चलेंगे। In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. पर 1970 में जो अमेजोन ट्रांस अमेजोन हाईवे बना, उसकी वजह से जो भी रेन फॉरेस्ट के जितने भी पार्ट्स हैं वो इजीली मतलब एक्सेसिबल हो गए, मतलब वहाँ पहुँचना और आसान हो गया। Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. तो जो एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी मतलब यूज़ करा जाने लगा डिफरेंट जगहों पे पहुंचने के लिए वहाँ पे रेन फॉरेस्ट में। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming. तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी ना उनको मतलब पुश्ड आउट किया, मतलब वो एरियाज चेंज किया, मतलब वो एरियाज से बाहर निकाल के उनको फोर्स किया गया, सेटल किया गया नए एरियाज में, मतलब फोर्स किया गया कि वो नए एरियाज में सेटल हो। और जो उनकी प्रैक्टिस थी ना, मतलब जो वो फार्मिंग करते थे वो रेन फॉरेस्ट में, तो जब वो उन्होंने वहाँ से अपना एरिया चेंज किया तो वो सेम फार्मिंग मेथड वो वहाँ जब उन्होंने अपनी जगह चेंज करी तो वो उन जगहों पे जाके अपना सेम फार्मिंग मेथड है ना उनको फॉलो करते थे, जो वो रेन फॉरेस्ट में फॉलो करते थे। फिर जब उन्होंने अपनी जगह चेंज कर दी तो वो सेम फार्मिंग मेथड वो वहाँ पे भी उसको कंटिन्यू रखते थे। The development activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. ये जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही थी ना रेन फॉरेस्ट में, उससे वहाँ पे उसको रेन फॉरेस्ट को बहुत ही भारी नुकसान पहुंच रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी बायोलॉजिकली रेन फॉरेस्ट में। It is estimated that a large area of rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. ये एस्टिमेट किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है ना रेन फॉरेस्ट का वो अमेजोन बेसिन में डिसअपियर होता जा रहा है, मतलब जो वैली है ना, जो रिवर है, वहाँ पे वो डिसअपियर होता जा रहा है, वो जो लैंड का एरिया है ना वो पानी में डिसअपियर होता जा रहा है रिवर में। You can see that the destruction of forest has a much wider implication. ये जो 8.6 फिगर है ना यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पहले कितना बड़ा अमेजोन रेन फॉरेस्ट था और जो धीरे धीरे ये
यहाँ पे ट्रीज कटते जा रहे हैं, लैंड बनती जा रही है, तो यहाँ पे कैसे कैसे इसका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लैंड ही लैंड बच रही है, और यहाँ पे ट्रीज की जो अमाउंट है वो काफी कम हो गई है। तो ये आपकी फिगर 8.6 में दिखाया गया है। द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल्स एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू द बैरन लैंडस्केप। जो टॉप सॉइल है ना, वो मतलब बिल्कुल जब बारिश होती है तो वो उससे बिल्कुल धुल जाती है, और सिर्फ एक बैरन लैंडस्केप रह जाती है। उसमें क्या रहता है कि सिर्फ एक जमीन रह जाती है, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट तो रहे नहीं इतने ज्यादा, सिर्फ लैंड ही लैंड है, तो जो ऊपर की मिट्टी है वो सब उससे बारिश से बह जाती है, और वहां पे सिर्फ लैंड ही दिखाई देती है। So that was all about the life in the Amazon basin. And our next heading is life in the Ganga Brahmaputra basin. The tributaries of rivers Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent, which is shown in the figure 8.8. The basin lies in the subtropical region that is situated between 10° north to 30° north latitudes. The tributaries of the river Ganga, like the Ghangra, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kosi, and the tributaries of Brahmaputra drain it. Look at the atlas and find names of some tributaries of the river Brahmaputra. जो ट्राइब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की और ब्रह्मपुत्रा की, वो दोनों की मिलके गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाते हैं। मतलब जो दोनों की रिवर्स है ना, कुछ रिवर्स जो गंगा नदी में मिलती हैं आके, और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसकी जो नदियां उनमें मिलती हैं, तो वो दोनों नदियां मिलके सारी ब्रह्मपुत्रा में आके मिलती हैं, और वो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो ये बेसिन है, जो ये वैली है, वो सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करती है 10° नॉर्थ टू 30° नॉर्थ लैटिट्यूड में। मतलब 10° नॉर्थ और 30° नॉर्थ के बीच में ये लाई करती है। और जो ट्राइब्यूटरीज है ना रिवर गंगा की, जो है घाघरा, द सन, द चंबल, गांदाक, द कोसी, ये ट्राइब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा रिवर में जाके, मतलब जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो उसको ड्रेन करती है, मतलब उसको फ्लो करने में हेल्प करती है। जो ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरीज हैं ये सब मिलके फ्लो करती हैं इकट्ठे होकर। जो ये फिगर 8.8 है, इसमें आपको ब्लू लाइंस शो करी गई हैं जो गंगा रिवर की और ब्रह्मपुत्रा रिवर की दिखाई गई है। और ये सब जितनी भी रिवर्स हैं या छोटी छोटी जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो आके मिलती हैं, और ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाती हैं। The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountain and the foothills of the Himalayas, and the Sundarbans Delta are the main feature of this basin. जो भी प्लेन्स हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा के, और जो माउंटेन्स हैं और जो फुट हिल्स हैं हिमालय के, सुंदरबन डेल्टा, ये मेन फीचर है इस बेसिन का, इस वैली का ये मेन फीचर है। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, और जो ऑक्सबो लेक्स हैं वो जो प्लेन का एरिया है उसको दर्शाते हैं, उनको दिखाते हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट, ये जो एरिया है ये मोस्टली डोमिनेटेड है, मतलब मॉनसून क्लाइमेट से यहाँ पे मोस्टली बारिश रहती है। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, यहाँ पे जो मॉनसून की बारिश है वो मिड जून से मिड सितंबर तक होती है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स कूल, यहाँ पे जो समर्स हैं वो गर्म होती है, मतलब गर्मी होती है समर्स में, और जो विंटर्स हैं उनमें ठंडक होती है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया फिगर 8.8, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइन्स। ये आपकी एक्टिविटी है कि इसमें आपको जो इंडिया का मैप है उसमें आपको देख के बताना है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कहाँ पे लाई करता है। द बेसिन एरिया हैज वेराइड topography. The environment plays a dominant role in the distribution of the population. The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain. इसका मतलब है कि जो वैली का जो एरिया, जो बेसिन का एरिया है ना, उसमें काफ़ी वैरायटी है। उसके जो फिजिकल फीचर्स है ना, जो उसकी टोपोग्राफी है उसमें काफ़ी वैरायटी है।
और जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन करने में पॉपुलेशन का। द माउंटेन एरिया स्टीप है, मतलब जो वहाँ पे माउंटेन्स का एरिया, वहाँ पे खड़ी चढ़ाई स्टीप स्लोप्स हैं और बहुत ही डिफ़िकल्टी है, मतलब वहाँ पे इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, मतलब वहाँ रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। Therefore, less number of people live in the mountain area of the गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। इसी वजह से वहाँ पे काफ़ी कम अमाउंट में लोग रहते हैं जो माउंटेन एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेट। जो वहाँ पे प्लेन का एरिया है ना, वो वहाँ पे बहुत ही सूटेबल लैंड प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स के हैबिटेशन के लिए, मतलब वहाँ पे उनके रहने के लिए। द सॉइल इज फर्टाइल, वहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल है, मतलब वहाँ पे वो क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जो वहाँ पे एग्रीकल्चर है वो वहाँ की मतलब मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करना, और वहाँ पे फ्लैट लैंड्स उनको प्रोवाइड होती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। जो लोगों की वहाँ पे डेंसिटी है, मतलब वहाँ पे जो लोगों के पॉपुलेशन का रेट है ना, वो काफ़ी हाई है प्लेन्स में रहने का। द मेन क्रॉप इज़ पैडी, वहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो पैडी ग्रो होती है। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, जो पैडी है उसकी जो कल्टीवेशन मतलब उसको ग्रो करने के लिए सफिशिएंट वाटर हमें चाहिए होता है। एक सफिशिएंट अमाउंट में हमें वाटर ग्रो करने के लिए चाहिए होता है पैडी को। और इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई, और वो जहाँ पे रेनफॉल की अमाउंट बहुत हाई होती है, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो वहाँ ग्रो करती है। पैडी को बेसिकली हम राइस कहा जाता है, जो धान होती है ना वो होती है पैडी। और जो चावल होते हैं वो मोस्टली जो बारिश मतलब उनको पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, वो ज़्यादा पानी वाले इलाकों में होते हैं जो चावल होते हैं, और उनको हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए। So students, today we'll do only till here, and tomorrow we'll continue this heading Life in the Ganga Brahmaputra Basin. So if you are having any query regarding this topic, or earlier we have discussed about the life in the Amazon basin, if you are having any query regarding till here, you can ask me in the comment section. So thank you so much students, and have a nice day.